Egg and broiler production. Broil, broiler chickens are fed with vitamin-rich supplementary feed for growth, feed for good growth rate and supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. Care is taken to avoid more mortality and to maintain in feathering and carcass quality. They are produced as broilers and sent to market for meat purpose. For good protection of poultry birds, good management practices are important. This include maintenance of temperature and hygienic conditions in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease in pets. The housing, nutritional, and environmental requirement of broiler are somewhat different from what those of egg layer. The ration, the requirement for broiler is protein rich with adequate fat. The level of vitamins A and K is kept high in the poultry feed. Poultry fall suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites, as well as from nutritional deficiencies. This necessitates proper cleaning, sanitation, and spraying of disinfectant at regular intervals. Appropriate vaccination and prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छे आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने से और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रॉयलर के आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है और मुर्गियों को संक्रामक
रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिसमें महामारी से यह ग्रसित न हो। इन सावधानियों को बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि नहीं होती है। फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन। Fish is a cheap resource of animal protein for our food. Fish production includes the finning to fish as well as shellfish such as prawns and mollusks. There are two ways of obtaining fish. One is from natural resources, which is called capture fishing. The other way is by fish farming, which is called culture fishery. The water sources of the fish can be either seawater or freshwater, such as in rivers and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater. Marine fisheries. India's marine fisheries is मत्स्य उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं तथा दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल अलवणीय हैं। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। अब है मरीन फिशर्स। India's marine fishery resources include 7,500 kilometers of coastline and the deep seas beyond it. Popular marine fish varieties include pomfret, mackerel, tuna. Popular marine fish varieties include pomfret, mackerel, tuna, sardines, and Bombay duck. Marine fish are caught using many kinds of fishing nets from fishing boats. Yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounders. Some marine fish of high economic value are also found in seawater. This includes finned fishes like mullet, betki, and pearl sports shellfish such as prawns, mussels, and
oysters, well as seaweed. Oyster are also cultivated for the price they make. As marine water fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only meet by such culture fisheries, a practice called mariculture. समुद्री मत्स्यिकी भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ वो पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना, सारडाइन तथा बाबेडंक है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाले नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीर तामापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। इन सूचनाओं को का उपयोग कर मछली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट। कवचीय मछली जैसे झींगा, मसल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्र खरपतवार ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों के पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्राणी को समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर कहते हैं। Inland fishers. Freshwater resources include canal, ponds, reservoirs, and rivers. Brackish water resources where seawater and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs, while capture fishing is also done in such island water bodies. The yield is not high. Most fish production from this resource is through agriculture. Fish culture is sometimes done in combination with a rice crop so that fish are grow in water in paddy field. More intensive farming can be done in composite fish culture system. Both local and important fish species are used in such systems. अंतरस्थलीय मत्स्यिकी ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी, मुख, संचुरी, लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतः स्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसलों के साथ भी किया जाता है।
अधिक मछली संवर्धन मिश्रित वाली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है ऐसे किया जाता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक से ही तालाब में लगभग 5-6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है।